Hello बच्चों, I hope your understanding is clear about the male reproductive organs. Okay, and we have not discussed the effect of hormones and function of testes. So today we are going to discuss function of testes. Actually बच्चों, whether there are testes or ovaries, they are responsible for the formation of ovaries for egg and testes for sperm. Okay, they are also responsible for secretion of various types of hormones. Okay बच्चों, so in male as well as in female, process of gamete formation takes place, process of sperm and ovum formation takes place, and this is known as gametogenesis. Okay, so term is gametogenesis. What is gametogenesis? Formation of gametes by primary sex organs, that is testis in male and ovaries in female. Okay, gametogenesis is the process of formation of gametes by testes in male and ovaries by female is known as gametogenesis. Now you can see in male process of sperm formation is taking place because in male sperm is gamete, and in females process of ovum formation is taking place, and in females ovum is female gamete. Okay, so two different types of gametes we are forming. So there are two different types of gametogenesis. One is spermatogenesis and second is oogenesis. Okay, spermatogenesis and oogenesis. So obviously terms are explaining itself. चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं. Spermatogenesis means formation of sperms and oogenesis formation of ovum. Okay बच्चों, spermatogenesis is the process of formation of sperms, and today we are going to discuss spermatogenesis. Okay, if we study spermatogenesis in male, it takes about 65 to 75 days. Okay, 65 to 75 days ये spermatogenesis की process लेती है. Okay, and it begins at the age of puberty. Okay, कब start होगी ये process? At the age of puberty, and in males the age of puberty is 12 to 14 years. Okay, getting my point? And this process takes place in seminiferous tubules, and in seminiferous tubules specific cells are present which are known as spermatogonial cells. Okay बच्चों, getting my point? So in spermatogenesis it starts or it begins with the spermatogonial cells which contain diploid number of chromosomes. तो यहाँ मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है क्योंकि टाइम फिर वेस्ट होता है. तो ये डायग्राम है. तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल की एक साइड की वॉल बना रखी है. ठीक है, और इस वॉल की साइड की ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड इस दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपकी जो स्टिक्ड हैं, चिपकी हुई हैं, दीज आर द लेबलिंग नहीं की है. अब कर लेते हैं लेबलिंग को ताकि आपको क्लियर हो जाए. बट आई डोंट हैव अ वेरी स्मार्ट सा पेन नहीं है. सब पेन एक्चुअली ख़त्म होते जा रहे हैं. ओके, तो क्या होने वाला है ये? तो इसमें क्या होगा कि दीज टू आर, ये पूरी की पूरी रो हम यहाँ लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया. ओके, कैसी हैं ये? डिप्लॉयड यानी कि 2n वाली हैं, और इनसे जो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, इनसे अलग हो जाएंगी, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से अपना कनेक्शन लूज कर देंगी. ओके, और कहाँ आ जाएंगी? टाइट जंक्शंस को क्रॉस करके स्क्वीज करके बाहर आ जाएंगी और चेंजेस करेंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी. उनको हम क्या नाम दे देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो ये आपकी कैसी हो गई? प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट, साइट्स मीन सेल, दैट्स वाई स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ओके, तो क्या कोई डिफरेंस है? बस जरा सा डिफरेंस है कि ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी हुई है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी हुई नहीं है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या, दूसरा डिफरेंस कोई दिख रहा है? या दे गेट डिफ्रेंशिएटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स, ये वाली सेल्स स्पम नहीं बनाएंगी, ये सेल्स स्पम बनाने में पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, लेकिन ये सेल है कौन सी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ऑटोमेटिकली स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पम्स। एक्चुअली होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ starting of spermatogenesis, these spermatogonial cells repeatedly divide by mitosis, okay, in which chromosome number remains same. okay, mitosis से divide करेंगी और बहुत सारी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बना लेंगी। उनमें से कुछ सेल्स खाना पीना खा करके और स्पर्मेटोगोनियल सेल से सेपरेट होकर के किसकी तरह से एक्ट करने लगेंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की तरह से एक्ट करने लगेंगी, और कुछ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स की तरह से ही रहेंगी, सो दैट कि वो फर्दर माइटोसिस करके क्या बना सकें? हाँ जी, फर्दर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना सकें और स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस कंटिन्यू होती रहे। ओके बच्चों, देन दीज स्पर्मेटोसाइट्स गोज टू फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक यानी कि मियोसिस के लिए जाएंगी और क्या बना लेंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी और स्पर्मेटोगोनियल सेल की प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं है, दे बोथ आर एन, लेकिन क्योंकि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के थ्रू बने हैं तो ये ज़रूर कैसे हो जाएंगे? एन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। ओके, यहाँ सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस वाइल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म्ड बाय द मियोसिस। और मियोसिस भी कौन सी होने वाली है बच्चों? M1, मियोसिस 1, इन विच क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं क्रोमोसोम्स को क्या करना है? फर्टिलाइज करना है मेल गैमीट को। तो x यहाँ से जाएगा, x वहाँ से जाएगा और 2x हो जाएगा, या n यहाँ से जाएगा, n वहाँ से आएगा और 2n हो जाएगा, यानी कि हम अपना ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर क्या कर सकते हैं? रीस्टोर करके रख सकते हैं। ओके बच्चों, दीज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर कोज डिवीजन एंड दे फॉर्म स्पर्मेटिड्स। क्या बनाएंगे? स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। ओके, इसमें मैंने स्पर्मेटिड्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? हाँ जी, बनाए तो हैं। चलो इनको हम नाम दे देते हैं स्पर्मेटिड्स। ओके, स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटिड्स मॉडिफाई होकर के कुछ चेंजेस करके बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, by the process of spermiogenesis these spermatids changes or convert or form the sperms और spermatozoa। और जो कि यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है, इसको जरा सा मैं हाईलाइट कर दूँ येलो कलर से, ये वाला जो स्पर्म दिखाई दे रहा है इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजोआ। तो इन दिस वे inside the seminiferous tubules by the spermatogonial cells formation of spermatids takes place। ओके, तो इसका अगर हम फिगर बना करके देखें तो जो एक एनसीईआरटी में तो बन ही रहा है, वो तो बेस्ट है ही, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हमें फॉलो करना है। तो हम प्यूबर्टी के टाइम पर सबसे पहले क्या होगी हमारे पास में? सेल होगी, दैट सेल डिवाइड्स बाय सेवरल माइटोसिस। तो क्रोमोसोम नंबर जो भी इस सेल का होगा वही कितना हो जाएगा? वही इन सेल्स का हो जाएगा। फिर से डिवाइड कर रही हैं, 1 से 2, तो कितनी हो गई? 4। ओके, एंड दिस इज नोन एज द माइटोसिस डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइटोसिस डिफरेंशिएशन। ओके बच्चों, माइटोसिस डिफरेंशिएशन। और ये पूरी की पूरी सेल्स हमारी कौन सी सेल्स हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ओके, या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। अब इनमें से एक सेल क्या होने वाली है बच्चों?
डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, और डिफ्रेंशिएट होने के लिए हमें अलग कलर से बना लेते हैं। ये सभी डिफ्रेंशिएट होंगी और कुछ क्या करेंगी, फर्दर स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनाती रहेंगी। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गई, और डिफ्रेंशिएट होकर के फर्स्ट डिवीजन किया है इसने, कौन सा वाला, M1, और क्या बना लिए 2, ये कौन सी हो गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये कौन सी होगी बच्चों, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिफरेंस क्या है, ये एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ कितना है 2x। ओके बच्चों, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर कौन सा डिवीजन करेंगी, M2 यानी कि माइटोसिस ही बनाएंगी, और क्या बना लेंगे, ये स्पर्मेटोजोआ, नहीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जगह स्पर्मेटोजोआ, और ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड्स, जोआ नहीं स्पर्मेटिड्स, कन्वर्ट करके क्या बना लेंगे, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो ये कौन से हो गए हमारे, स्पर्मेटिड्स, जो क्या बनाएंगे, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ तक तो बच्चों क्या रहा कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, और फिर यहाँ पर फिर क्रोमोसोम नंबर कैसा रहा, सेम। ओके बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस डिवीजन के थ्रू करेंगे, फर्स्ट मियोटिक, और सेकेंडरी में होगा सेकेंड मियोटिक विच इज जनरली माइटोसिस। तो नो चेंज इन देयर क्रोमोसोम नंबर। और जो स्पर्म्स बन रहे हैं वो कौन से वाले बन रहे हैं, दो तरीके के बन रहे हैं, एक जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम है और एक जिसमें कि वाई क्रोमोसोम है, मीन्स वाई क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म एंड एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म। और इस तरीके के स्पर्म्स को, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूसेस two types of gametes are known as heterogametic. So human male is heterogametic as it produces two types of gametes. लेकिन हमने यहाँ तक की प्रोसेस तो ठीक से पढ़ ली, स्पर्मेटिड, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म and formation structure of sperm we will take in next video. Okay बच्चों, till then bye bye.